बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड वीडियो है उसका A2 का एनर्जेटिक्स का। तो हम इंथैल्पी चेंजेस डिस्कस करते रहे हैं, ठीक है। एटमाइजेशन तक हम कर चुके हैं। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जीज डेल्टा H स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसी तरह स्टेम डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन 1 mole of a specific bond is broken. Actually, this is the energy required to break 1 mole of a specific covalent bond under standard conditions. तो वो डेफिनेशन हम लिंक करते हैं जो सबके साथ यही है कि द एंथैल्पी चेंज under standard conditions of temperature and pressure when 1 mole of a specific bond is broken. For bond breaking, the energy required is absorbed. इसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो हम इसको डेल्टा H पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये है इसका एनर्जी एब्जॉर्ब। अच्छा, तो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? बॉन्ड एनर्जीज़ को यूज़ करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम यूजिंग द बॉन्ड एनर्जीज। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस of bond energies reactants minus sum of enthalpy changes bond energies of products। ये है इक्वेशन जिससे बॉन्ड एनर्जीज को हम यूज़ करते हैं एंड वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ गिवन रिएक्शन। उसमें सम ऑफ bond energies for bond breaking and sum of bond energies for bond making, ये हम ऐड करते हैं इस इक्वेशन में। और उसके साथ जो भी डिफरेंस होगा, पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, और नेगेटिव होगा डेल्टा H तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अच्छा, अब
इसके बाद है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, enthalpy change EA, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 और 2 और 3. तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करते हैं. The enthalpy change when one mole of atoms gain 1 mole of electron. किस तरह? The enthalpy change when 1 mole of gaseous atoms gain 1 mole of electron to form 1 mole of gaseous -1 ions. किस तरह डिफाइन करेंगे? The enthalpy change under standard conditions of pressure and temperature when 1 mole of gaseous atoms gain 1 mole of electron electrons to form 1 mole of gaseous uninegative या 1 negative ions. देखिए मोल क्वांटिटी या नंबर 6.02 into 10 raised to power 23. When gaseous atoms are 1 mole and electrons are 1 mole. And electrons are 1 mole. So each atom is gaining 1 electron. Each atom is gaining 1 electron. That's why the ions formed is -1, -1 charge उसके ऊपर -1 charge होगा. Atoms are gaseous because they are free atoms and forming the ions they are also gaseous. वो भी gaseous होते हैं. अच्छा, ये जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज एक्सोथर्मिक. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक. अब व्हाट अबाउट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी EA2 and three. सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज या फोर्थ जो भी है वो एंडोथर्मिक होंगे. क्यों एंडोथर्मिक होंगे? क्योंकि नेगेटिव आयन 1 uninegative ion gaining electron, so there is same charge repulsion, negative ion is negative, electron has negative charge, so there is repulsion, so that repulsion has to be overcome. That's why energy is needed. Similarly, third electron affinity is also endothermic,
So these are endothermic. Why endothermic? Due to the same charge repulsion between negatively charged ion and electron which is negatively charged, so that repulsion has to be overcome. So energy is needed, energy is absorbed, endothermic. Now electron affinity. We can represent any equation for the first electron affinity, for the second electron affinity, for the third electron affinity. For example, we have 1 mole of gaseous oxygen atoms. To gain 1 mole of electrons, is the equation, forming 1 mole of gaseous ions. This is first electron affinity. If you want to write the equation for second electron affinity, it would be then 1 mole of uninegative ion gaining 1 mole of electron, forming 2 negative ions, 1 mole of gaseous ions, 2 mole. Similarly, we can represent third one. Okay, now factors affecting electron affinity. Factors affecting electron affinity. So there are 2 factors. One is the nuclear charge and the shielding effect. Nuclear charge. Nuclear charge. Nuclear charge is directly proportional to electron affinity. Because nucleus is positively charged. Stronger the force of the nucleus, higher the electron affinity, stronger would be the attraction for the incoming electron to be gained by that atom. So it is directly proportional. Electron affinity is directly proportional to nuclear charge. So no need to explain it further in words. It's mathematical explanation. Nuclear charge is directly proportional to electron affinity. What is nuclear charge? Actually, the number of protons in the nucleus of an atom. When the number of proton increases, nuclear charge become stronger. The strength of nuclear charge increases. So it is greater attraction for the incoming electron to be gained by the atom. Second factor is shielding effect.
What is shielding effect? To shield, to cover the excess, to stop the excess of electron. Shielding means covering, giving coverage for anything to approach, to have access. यानी इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम की तरफ अट्रैक्टेड हों तो दो फैक्टर है, एक तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, दूसरी शील्डिंग इफेक्ट किया है जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड करता है। शील्ड का मतलब क्या है कि उसको स्टॉप करता है, उसको रोकता है, बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो न्यूक्लियर चार्ज को when it would be effectively applied on the outer electron, on the electron to be entering the outer shell, so it is shielded by the inner electron. So shielding effect is inversely proportional to electron affinity. It is inversely proportional to electron affinity. Shielding effect, if you can write mathematically, shielding effect is inversely proportional to EA, electron affinity. Okay, shielding effect is inversely proportional to electron affinity. इसके बाद स्टूडेंट्स जो कि हम एंथैल्पी चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं E2 के टॉपिक में, एस में आप पढ़ चुके हैं, 1 by 1 कर रहे हैं, ठीक है। एंथैल्पी चेंज ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, इनको सैम्पली यहाँ पे LAT या LATT लिखते हैं या LE, कैपिटल L और कैपिटल E, उसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? स्टेम डेफिनेशन, यू कैन रिकॉल द एंथैल्पी चेंज under standard conditions of temperature and pressure when 1 mole, when को आगे ना लेंगे क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं, 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions. Gaseous ions, ठीक है। अच्छा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 1 mole of an ionic compound is formed from its gaseous ions under standard conditions, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस।
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड को आप बनाएं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कॉमन एग्जाम्पल है, यू कैन हैव सोडियम आयन positive, it should be gaseous. Chloride ion, gaseous, forming NaCl, which is solid at room temperature and pressure. कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। वही आप इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, डेल्टा एच स्टैंडर्ड लेटिस एनर्जी। ठीक है, इसकी क्या फैक्टर्स हैं? यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। साइज या रेडियस ऑफ आयंस अच्छा, size of ion or radius of ion, how it's affecting the lattice energy। अब ये हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि जितना कोई आयन का साइज बड़ा होगा, लार्जर होगा, उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो डिफ्यूज्ड होगी, चार्ज डेंसिटी डिफ्यूज होगी, would be scattered on a larger volume, so it attraction would be decreasing, क्योंकि between attraction between the positive and negative ion, the greater the stronger the attraction, the higher would be the lattice energy। जितनी ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी उतनी लेटेस्ट एनर्जी हायर होगी। अब अगर साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा, तो अट्रैक्शन कम होगी। अट्रैक्शन कम होगी तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी? ये कम होगी, डिक्रीजिंग होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी आप लिखें आर radius of ion is inversely proportional to LE। अब मैंने इनको LE लेगा, लेटेस्ट एनर्जी। सेकंड फैक्टर है चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन। अब चार्ज ऑन आयन उसी तरह होगा कि हायर चार्ज +1 -1 +2 -2 +3 -3 आयन्स में
हम ज़्यादातर चार्जेस 1 to 3 काउंट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये आयोनिक होते हैं, आयन्स होते हैं 1 2 3। ठीक है। अब जितना चार्ज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। द अट्रैक्शन बिटवीन +2 -2 is stronger than 1 1, and similarly the attraction between +3 and -3 would be the strongest. ठीक है। So it is directly proportional to the lattice energy LE। ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन आयन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, अब इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, ठीक है ना। कोई कंपाउंड गिवन है और आपको इमेजिन करना है, एस्टिमेट करना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। वहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन से आयन्स उसमें हैं, और फिर अगर सिंगल आयन्स हैं, यानी सिंगल एटम के आयन्स हैं, तो उसको आप पीरियोडिक टेबल से रिलेट कर सकते हैं कि किस ग्रुप में है, ठीक है ना, किस पीरियड में है, और उनका साइज़ और चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है। अगर कंपाउंड आयन्स है, जैसे कि नाइट्रेट है, सल्फेट है, कार्बोनेट्स है, ठीक है, तो वो तो जाहिर है कि कॉमन इफ़ेक्ट होगा उसका, क्योंकि किसी दो में आप इसको करेंगे। या क्लोराइड आयन्स है, ठीक है ना, अगर दो के हम ले सकते, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे कि इनमें लेटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो हम क्लोराइड तो दोनों के लिए कॉमन है। फैक्टर यानी जो फ़र्क डालेगा वो सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन डालेगा। अब मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 है, सोडियम के ऊपर +1 है, तो डेफिनेटली मैग्नीशियम की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। और फिर इसकी साइजेस, आयोनिक साइजेस को रिलेट करें, दोनों पीरियड 3 में है, और जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनिक रेडियाई या रेडियस डिक्रीज़ हो जाती है। तो मैग्नीशियम का साइज़ भी सोडियम आयन के साइज़ से छोटा है, इसलिए उसकी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, और सोडियम क्लोराइड से मैग्नीशियम क्लोराइड की लेटिस एंथैल्पी हायर होगी। ये एक्सप्लेनेशन आप किसी भी उसको दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन लेके कंपेयर the latest energies of NaCl and MgCl2, which one is higher? तो इसके लिए आप ये एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, क्लोराइड आयन्स आर कॉमन फॉर बोथ, द डिफरेंस इज़ दैट ऑफ सोडियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ठीक है ना। तो आप इसकी ख़ुद करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर इसको लिखूँ आगे। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। क्या सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, तो चार्ज डिफरेंस है, ये आपने देख लिया। ठीक है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज का, तो इसलिए मैग्नीशियम का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो हायर होगी सोडियम से। फिर सेकंड फैक्टर है रेडियस का। अगर रेडियस बड़ा होगा तो लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी कम होगी। अब मैग्नीशियम का जो रेडियस है वो सोडियम आयन के रेडियस से स्मॉलर है, तो इसलिए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। दैट्स वाई
the latest enthalpy of magnesium chloride is higher than the latest enthalpy of sodium chloride. ये आपकी एक्सप्लेनेशन है. इसको मैं इस तरह लिखूँगा, लेटेस्ट energy of magnesium chloride is higher than सोडियम क्लोराइड. ये तो मैथमेटिकली मैंने लगा. रीज़न क्या है? देखिए, चार्जेस कंपेयर करें आप. सोडियम आयन charge on sodium ion is equal to +1 charge on magnesium ion is +2. तो चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम की हायर है. रेडियस of magnesium ion is smaller than sodium ion. Both the factors can be counted. चार्ज हायर है, अट्रैक्शन हायर होगी. रेडियस मैग्नीशियम का स्मॉलर है तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी. इसलिए लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ लार्जर देन द लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है, ये आपने इसको लिखना है. ये आज के लिए काफ़ी है. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट एंथैल्पी चेंजेस और फिर इसके बाद बॉन्ड हैमर साइकिल्स के साथ मिलेंगे.